Hello students, welcome back to the site of Resonance. Today we will going to begin with wave terminology. So wave terminology. So we will going to discuss the terms related to wave. The first term that we will going to discuss is amplitude. It is amplitude. What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement of a particle from its mean position. See, we know that in a wave, particles are continuously vibrating about their mean position, means they are doing rapid back and forth motion about their mean position. So the maximum displacement, see, this is a particle, it will going to move this, then again back to its position, then here and again back to its mean position. So the displacement of particle at different instant is different. We know at some instant it is at here, at some instant it is here, at some instant it is here. So whatever be the maximum displacement of the particle from its mean position, that is known as its amplitude. That is known as its amplitude. For a transverse wave, we know that particles move in a direction perpendicular to the propagation of wave. I am taking the propagation of wave in this direction, so particles are moving up and down. So what will be the amplitude? Amplitude will be this, that is the maximum displacement of particle from its mean position. This is your amplitude and it is represented by capital A or small a. Okay, so this is my amplitude. This length is your amplitude, this length is your amplitude. Okay, this is amplitude. The SI unit of amplitude is meter. SI unit of amplitude is meter. SI unit of amplitude, it is meter. So as this is the length, that is the displacement of a particle, maximum displacement of a particle from its mean position, and displacement SI unit is meter, so SI unit of amplitude is also meter. This was the case of transverse wave. What will happen in longitudinal wave? We know in longitudinal wave particles will going to vibrate like this. Particles will going to vibrate like this and wave will also going to propagate in this direction only. So the maximum displacement of the particle from its mean position will be known as its amplitude, So that is amplitude. Now moving forward to the second term. So we are going to discuss the second term, and the second term is wavelength. It is wavelength. Now what is wavelength? See, wavelength have many definitions. The first definition that I will going to tell you, it is the distance moved by a wave when one particle has completed its one vibration. So the distance traveled by wave when a particle completes its vibration. Distance traveled by wave when a particle completes its vibration means if a particle is vibrating, so it in the time in which it has completed its one vibration, the wave must have moved some distance. That distance is known as wavelength. Or you can say for sorry, for longitudinal wave, it is the distance between two consecutive compressions or rarefactions. Okay, we know in there are compressions, rarefaction, compression, rarefaction, compression, like this. There are compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction in
longitudinal wave. So distance between two consecutive compression, that distance, or the distance between two consecutive rarefaction, that is this distance. This is known as wavelength. This is known as wavelength, and it is represented by lambda. It is represented by lambda. So wavelength is represented by lambda. It is lambda. Okay. So it is represented by lambda. It is the distance between two consecutive, remember, not any two, consecutive compressions or consecutive rarefactions in case of a longitudinal wave, or you can say it is the distance between, for transverse wave. It is the distance between two consecutive crest or consecutive troughs. Means we know in a transverse wave, look here only, in transverse wave, this is your crest, this is your trough, this is your crest, and again this is your trough. So the distance between two consecutive crest means this distance, this is lambda, or between the two consecutive troughs means this distance, this is lambda. Okay. So lambda means wavelength, and what wavelength is? Wavelength is the distance traveled by wave when a particle completes its one vibration. मतलब पार्टिकल जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा तो वेव कितनी आगे चल चुकी होगी, वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ. तो जो वेव आगे चलती है वो एक कंप्रेशन से कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन तक चल जाती है, या फिर एक रेयरफेक्शन से नेक्स्ट रेयरफेक्शन तक चल जाती है. और इन केस ऑफ, दैट वाज द केस फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक मूव कर जाएगी वेव, या फिर एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक मूव कर जाएगी कौन, वेव, जब पार्टिकल एक वाइब्रेशन अपना कंप्लीट करेगा उतने टाइम में. दैट इज वेवलेंथ. इट इज नोन एज वेवलेंथ. क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ. इसका रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये लेंथ है तो अगेन इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ विल बी, एसआई यूनिट विल बी मीटर. इट विल बी मीटर अगेन. ओके. So that is known as wavelength. एम्पलीट्यूड क्या है, पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. अब पार्टिकल ऐसे आगे गया, पीछे आया, फिर पूरा पीछे गया और फिर वापस मीन पोजीशन पर आया, इतनी देर में वेव कितनी आगे जा चुकी होगी, दैट इज नोन एज वेवलेंथ. तो वो एक क्रैश से दूसरे क्रैश तक चल जाती है, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक चल जाती है. किस केस में, ट्रांसवर्स वेव में. और लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक आगे मूव कर जाती है जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाता है, या फिर एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक. ये दोनों डिस्टेंस इक्वली होती है. दैट इज नोन एज वेवलेंथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. So we have talked about wavelength also, we have talked about amplitude also. Now we will going to discuss about time period. What we will going to discuss, it is the third topic, that is the time period. So now what is the time period? See, time period is the time taken to complete one vibration by a particle. It is the time taken by particle to complete one vibration. और एक वाइब्रेशन में वेव कितनी आगे जा चुकी है, लैम्डा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और टाइम टेकन बाय वेव टू मूव अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ. मतलब जो टाइम वेव को अपनी वेवलेंथ जितना आगे चलने में लगा होगा, उतनी देर में पार्टिकल में ने भी अपना वन वाइब्रेशन करा होगा, तो वही टाइम क्या कहलाएगा बच्चों, उस वेव का टाइम पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, एंड एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, टाइम है तो सेकेंड. ओके.
So what was amplitude? Maximum displacement of a particle from its mean position. ये amplitude है. What is wavelength? Distance between two consecutive crest or two consecutive trough in case of transverse wave, or it can be distance between two consecutive or two successive compressions or rarefactions in a case of longitudinal wave, or you can say it is the distance traveled by wave when a particle completes one revolution. When a particle completes one revolution. Now I am talking about time period. Time period is the time taken by a particle to complete one vibration. एक vibration करने में जो time लगा particle को, वो उसका time period कहलाता है wave का. या फिर मुझे पता है जब particle एक vibration कर लेगा तो wave कितनी आगे चल चुकी होगी, lambda. तो lambda चलने में wave को जो time लगा वो भी same रहेगा, उसको भी आप time period बोल सकते हो. SI unit time period की क्या है बच्चों? Second. SI unit क्या है? Second. Now I am moving forward to the fourth term, that is known as frequency. So fourth term I will going to discuss, and the fourth term is frequency. What it is? Frequency. See, what is frequency? Frequency is the time, frequency is the time taken, or you can say it is the number of vibrations completed in 1 second. It is the, it will more clear to you, number of vibrations completed by a particle in 1 second. Okay. So frequency क्या होगी? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लिए पार्टिकल ने. सी टाइम पीरियड क्या था? जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करा तो जो टाइम लगा वो क्या था? टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रहा है पार्टिकल, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव. दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव. और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड means number of crest or number of troughs or number of compression or number of rarefaction. आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट या फिर ट्रफ या फिर कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन, मतलब कितने नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इन 1 सेकंड, दैट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी. क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, बात वही होगी. इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन n या फिर f से. This is the representation of frequency. This is the representation of frequency, and its unit, SI unit will be hertz, or you can say second inverse, 1 by second. Okay, this is the unit. See what is frequency? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रहा है पार्टिकल, वो फ्रीक्वेंसी. और पार्टिकल को एक वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड. दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ना होए. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रहा है वो तो क्या है? फ्रीक्वेंसी. और एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है? टाइम पीरियड. ओके, नाउ वी विल गोइंग टू सी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. सो रिलेशन बिटवीन frequency and time period. See what is frequency? Frequency is the number of vibrations completed in 1 second. मतलब एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस हुए, मैं मान लेता हूँ n वाइब्रेशन हुए, तो n क्या हो जाएगी मेरे पास? फ्रीक्वेंसी. तो n वाइब्रेशन में कितनी देर लगी? 1 सेकंड. कितनी देर लगी? 1 सेकंड. तो एक वाइब्रेशन में कितनी देर लगेगी बच्चों? एक वाइब्रेशन में कितनी देर लगेगी? 1 बाय n सेकंड. 1 बाय n सेकंड. वापस समझे, एक सेकंड में मान लो n वाइब्रेशन हुआ, तो n क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी. n क्या है? फ्रीक्वेंसी. भाई एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशन होते हैं वो मेरे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी. तो 1 सेकंड में मान लिया मैंने n वाइब्रेशन हुआ, तो 1 सेकंड में अगर n वाइब्रेशन हुए तो n क्या बन चुकी है? फ्रीक्वेंसी. अब n वाइब्रेशन कितनी देर में हो रहे हैं? 1 सेकंड में. तो एक वाइब्रेशन कितनी देर में होगा? यूनिटरी मेथड 1 बाय n सेकंड में. अच्छा, तो एक वाइब्रेशन अगर 1 बाय n सेकंड में हो रहा है तो मेरे पास एक चीज मुझे पता चल गई यहां से,
क्या पता चल गई कि टाइम पीरियड मेरे पास 1/n आ गया, टाइम पीरियड मेरे पास 1/n सेकेंड आ गया। क्यों? एक वाइब्रेशन को करने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ गया, 1/n सेकेंड आ गया है, ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, n क्या थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए थे, n, तो n क्या थी, फ्रीक्वेंसी। तो n वाइब्रेशन कितनी देर में हुए, एक सेकंड में, तो 1 वाइब्रेशन कितनी देर में हुआ बच्चों, 1/n सेकंड में। 1 वाइब्रेशन को जो टाइम लगेगा वही मेरे पास टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया मेरे पास, 1/n सेकंड। टाइम पीरियड क्या हो गया, 1/n। दिस इज द रिलेशन बिटवीन frequency and time period, that both are reciprocal of each other, both are reciprocal of each other। और यहां अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो t इंटू एन की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। t इंटू एन मीन्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 1। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 1, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। देखो अगर आप चीजों को फील करेंगे तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ट्रांसवर्स वेव होगी तो ऐसे होगा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ऐसे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का हो अपनी मेन पोजीशन से, वो एम्पलीट्यूड है। जब पार्टिकल ने एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया तो इतनी देर में वेव जितनी आगे गई वो मेरे पास क्या है, वेवलेंथ है। या फिर आप कह सकते हो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन की, या फिर एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और ट्रांसवर्स वेव में एक ट्रफ से अगले ट्रफ की और एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट की डिस्टेंस को क्या बोल सकते हो, वेवलेंथ। दोनों एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ लेंथ है, तो इनकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। टाइम पीरियड क्या होता है, जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया पार्टिकल ने तो कितनी देर लगी उसको, वही टाइम पीरियड है। और मुझे पता है जब एक पार्टिकल अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा तो वेव आगे कितनी जा चुकी होगी, लैम्डा। तो अगली डेफिनेशन ये बन सकती है कि वेव अगर लैम्डा चली, मतलब वेव अगर अपने वेवलेंथ जितनी आगे चली तो कितना टाइम लगा उसको चलने में, दैट इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितनी वेव, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो गए, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो गए, दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एन या एफ से रिप्रेजेंट करते हो। ऐसा यूनिट क्या है बेटा, हर्ट्ज या फिर 1/सेकंड। अब रिलेशन निकाला हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। मुझे पता था एक सेकंड में अगर एन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो। एक सेकंड में मान लिया एन वाइब्रेशन है तो एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। एन वाइब्रेशन कितनी देर में, एक सेकंड में, तो एक वाइब्रेशन कितनी देर में होगा, 1/n सेकंड में। एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगा दैट इज 1/n सेकंड, वो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड 1/n आ गया। यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मल्टीप्लाई कर दो इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टीएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। So it was about time period and frequency. Now we will going to discuss about wave velocity. What we will going to discuss is wave velocity. That is our fifth point. See, what is wave velocity? Wave velocity is the distance traveled by wave in 1 second. मतलब वेव एक सेकंड में कितना आगे चल जाएगी, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। मुझे पता है वेलोसिटी इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। सो वेव की वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो वेव कितना आगे मूव कर जाएगी एक सेकंड के अंदर, वो मेरे पास क्या होएगा, वेव वेलोसिटी होगा। तो अगर मैं वेव वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे पता है v इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यही फॉर्मूला है हमारे पास हमारी बेसिक नॉलेज से। अब मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल लैम्डा करी वेव ने। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड करी बच्चों, लैम्डा। मतलब वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस आगे चल गई है वेव, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगी मेरे पास, लैम्डा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगी, लैम्डा। अच्छा मुझे बताओ अगर वेवलेंथ जितनी वेव आगे गई है तो उसको कितना टाइम लगेगा आगे जाने में, टाइम पीरियड। ये देखो, टाइम टेकन बाय वेव टू मूव अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ जितनी वेव आगे चल गई, वेवलेंथ जितनी वेव आगे चल गई, तो जो टाइम लगता है उसको मैं क्या कहता हूँ, टाइम पीरियड। तो टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी लैम्डा बाय टी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, लैम्डा बाय टी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी।
वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज दी वेव वेलोसिटी। मेरे पास वेलोसिटी आ गई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या बोलो, लैम्डा इंटू 1/t, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये लैम्डा इंटू 1 लैम्डा बाय टी। 1/t क्या है बच्चों, देखो इधर से 1/t अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो n इक्वल्स टू 1/t आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1/t आ जाएगा। तो 1/t कुछ नहीं है, क्या है, n है, 1/t कुछ नहीं है, क्या है, मेरे पास n है। तो वेव वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी लैम्डा इंटू n, जहां पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए यहाँ पर, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, और वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि इसका रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ से दिख रहा है 1/t को आप क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, है ना। इट्स वेरी सिंपल। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, SI यूनिट, SI यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। किसकी SI यूनिट आई है मेरे पास, वेव वेलोसिटी की। किसकी SI यूनिट आई, वेव वेलोसिटी की। तो हमने देखा एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का मीन पोजीशन से, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। SI यूनिट क्या है, मीटर, रिप्रेजेंट किससे करूंगा, a से। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। पार्टिकल ने अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करा तो इतनी देर में वेव कितनी आगे जा चुकी है, दैट इज वेवलेंथ। या लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन से लेके अगले कंप्रेशन तक की डिस्टेंस, या फिर रेयरफेक्शन से लेके अगले रेयरफेक्शन की, और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट से लेके अगले क्रेस्ट की डिस्टेंस, या फिर ट्रफ से लेके अगले ट्रफ की। ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस है तो मीटर होगी, क्या होगी, मीटर। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। भाई पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन करा तो कुछ टाइम लगा होगा, वो जो टाइम लगा होगा वही क्या है, टाइम पीरियड। और जब पार्टिकल एक वाइब्रेशन कर लेगा तो वेव कितनी आगे जा चुकी होगी बच्चों, लैम्डा आगे। तो वेव अगर लैम्डा आगे गई तो उसमें जो उसको टाइम लगा वो भी टाइम पीरियड ही होगा, क्योंकि दोनों बात तो एक ही है। तो टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या आएगी बच्चों, सेकंड। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या आएगी, सेकंड। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो एक सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मानो एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन करे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, 10। और अगर एक सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशन ही कंप्लीट करे तो फ्रीक्वेंसी 2। और अगर एक सेकंड में हाफ वाइब्रेशन ही कंप्लीट कर पाई तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज सेकंड इनवर्स। ओके, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है देखते हैं। एक सेकंड के अंदर अगर n वाइब्रेशन हो रहे हैं तो n क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। मैंने मान लिया एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, n, तो n क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड इक्वल्स टू n। तो n वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, एक सेकंड। n वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, एक सेकंड। तो एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, 1/n सेकंड। यूनिटरी मेथड, बहुत बेसिक। तो एक वाइब्रेशन में अगर 1/n सेकंड लग रहा है तो 1/n सेकंड क्या हो गया, टाइम पीरियड। क्योंकि एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो मेरे पास टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 1/n। 1/n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tn की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर वेव कितनी आगे चल गई, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी। तो मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मैंने मान लिया डिस्टेंस वो आगे चली लैम्डा, कितनी आगे चली, लैम्डा वेवलेंथ के बराबर। और लैम्डा चलने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन कितना हो गया मेरे पास, टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी आ गई लैम्डा बाय टाइम पीरियड। यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। मुझे पता है 1/t, 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मुझे पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी। तो वेव वेलोसिटी आ गई लैम्डा इनटू n। वेव वेलोसिटी क्या आ गई, लैम्डा इनटू n। So these were the wave terminologies that we have studied. There can be many numericals formed on this. Like आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, टाइम पीरियड दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। आपको लैम्डा वेवलेंथ और टाइम पीरियड दे देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, या वेलोसिटी और टाइम पीरियड दे देगा, वेवलेंथ पूछ लेगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी पूछ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक्स एंड द formulas also to do that numerical. Okay, so thank you for today. We will going to continue in our next lecture.